from where your journey started? Destiny has written all the things. हमें लगता है ना कि founders को तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, they are super confident और they are good at these particular skills. ऐसा नहीं है. They are into corporates. But when it comes to presentation, when it's come to speaking in front of people, they have a fear. What kind of soft skills would you like to address? Emotional intelligence, then email writing, handling the people, team spirit कैसे होना चाहिए, आपको टीम को कैसे लेके चलना है अपने साथ में. कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ने के लिए क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे-कैसे फिर उनको डील किया जा सकता है? आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने हैं ताकि आप शाइन करें. ड्रेस अप गुड, ड्रेस अप कॉन्फिडेंटली, क्योंकि एक ड्रेस चेंज करने से ही ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है. व्हाट यू वांट टू स्पीक is less important than how you speak. One piece of advice that is still with you. Hi everyone, welcome to the Skillset School. I always say this one school that you never knew you needed because you all have been learning communication with us. You all have been fond of when it comes to English communication, how to actually talk, how to be confident, and all of that. So today we have Deepika Rilan with us. She is a communication coach, and I would just not say a communication coach. She is a business communication coach. She has mastered communication skills actually, and मेरे को लगता है कि मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ अपने गेस्ट के बारे में, but again I'll hand it over to you. I'll ask it to you कि what all do we have in your introduction? How did the journey started and how is it going now? Thank you so much, Charu, for inviting. And yes, like you said, business communication, but it's not only about this communication. Yeah. We have a lot more than communication. Like soft skills are there, personality development is also there, then English communication, as you said. And apart from this, every skill that you would say जो आपको communicate करना सिखाती है, which actually comes in this. चाहे वो business meetings में हो, चाहे आप public के सामने कोई स्पीच दे रहे हैं या फिर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन है, डिबेट, इम्प्रॉम्प्टू स्पीक, बॉडी लैंग्वेज, इवन दो दैट ऑल्सो कम्स इन कम्युनिकेशन. So many things are there. So we are going to talk about all of them, I would say. And yes, we are ready for it and would love to give all my experience to you in this podcast. Let's see how it will be going on. Definitely. I am super excited to get all the insights from you because I feel like you hold a lot, to give it to the audience. Before I start anything, I would like to know, from where your journey started. I mean, confidence, communication was something that just came to you या फिर इसके पीछे, it just happened because of some conditions, you were bound to something, और कैसे हुआ ये सब कुछ basically. वहाँ से शुरू करते हैं. See, for me, I don't believe in this कि हम कुछ चाहते हैं तो वो हो जाएगा. It's just destiny has written all the things. For me, it was like this because when I was in school, I was really introvert and a shy child. I never thought to be a communication skills coach. Oh my God. Yeah, but my job or my journey has been started in a way I love to talk. वो भी मुझे पता लगा ड्यूरिंग माई कॉलेज. पहले स्कूल टाइम तक आई वुड लव टू बी अ एयर हॉस्टेस, बट वो नहीं हो पाया. तो देन इन माई कॉलेज डेज आई टुक ट्रेनिंग फॉर RJ. Okay. So I was voice over artist, I was doing RJ. From that job I come to know कि I love to talk. It's just I'm not able to confident enough to look at the eyes and then speak. I was confident enough to speak on mic. ठीक है. तो वो मेरा सिनेरियो, वो चीज़ मुझे उस जॉब के दौरान समझ आई. देन मूविंग टू माई एजुकेशन इंडस्ट्री, आई स्विच द जॉब इन दिस एजुकेशन सेक्टर वेयर आई कम टू नो कि करियर काउंसलिंग कितना इंपॉर्टेंट है. और वहाँ पे मेरी जॉब थी काउंसलर की. ठीक है. सो वहाँ पे इंटरेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता था. पेरेंट्स से मिलना, बच्चों से मिलना, उनको गाइड करना. देन इन दैट फील्ड आई गेट टू नो कि यार मैं कम्युनिकेशन तो ठीक थे ही, बट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ नाउ टू इंटरेक्ट विद ऑडियंस, राइट. सो वो मुझे वहाँ पे पता लगा. सो दिस इज हाउ आई फील समवेयर अ गैप. लाइक मी, देर आर सो मैनी किड्स जो स्कूल में मे बी अच्छे ना हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, बट इट इज़ अ स्किल दैट यू कैन develop over a period of time. Yeah. It's not a natural gift. Yes. ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट जॉब के दौरान मुझे ये चीज़ समझ आने लगी कि इट इज़ नॉट समथिंग which I have to fear of. Right. So this is how my journey has been started, and
once I took a gap from my career, I find something that introspection का time उसी time मिलता है actually जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो. Actually. तो मुझे भी पता लगा कि communication coaching is must for Everyone. Indian audience. Okay. बिकॉज ऐसा नहीं, बाहर फॉरनर, मेरे जो मेंटीज रहे हैं वो ऑल ओवर ग्लोब से रहे हैं. ठीक है. उनको भी फेयर होता है इंग्लिश में बात करने का, जो फॉरनर्स होते हैं. सभी को इंग्लिश नहीं आती. वहाँ पे भी हमारी इंडियन ऑडियंस होती है जो सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक. तो ये चीज़ मुझे मेरी इस जॉब के दौरान रियलाइज हुई कि जो हमें लगता है ना कि फॉरनर्स को तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, दे आर सुपर कॉन्फिडेंट और दे आर गुड एट दिस पर्टिकुलर स्किल्स, ऐसा नहीं है. दिस इज अ मिथ दैट came to me in my early 20. So this is the thing. And this So is that how was my a journey. myth that was actually bursted out, है ना? Right. और हम लोग सब लेके बैठ जाते हैं कि नहीं, इसको तो सब ऐसे ही मिल गया होगा, मतलब ऐसे मम्मी के वेट से थोड़ी कुछ सीख के आए हैं, मतलब we've all learned it on the journey, on the way itself. So what were the challenges that you faced? अब ये तो हमने बात कर लिया कि ऐसे ऐसे हमने चीज़ें रिकॉग्नाइज करी, इंट्रोस्पेक्ट करी and all of that. But still there are people जो शायद वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे because जहाँ पे आप आज पहुँच गए हो. So like what were the challenges and how do you want to suggest them to deal with it? Right. First challenge तो ये होता है, we are actually the fear of judgment. We have that fear. If I am there and I would say 10 people are standing over here, I have a fear of judgment कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. If I would say I would start speaking, वो हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में. मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है. ये हम सबको कहीं ना कहीं लगता है हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है. मे बी आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ टू टॉक, मे बी आई एम नॉट ड्रेस्ड इनफ टू टॉक. वो सब कुछ हमारे दिमाग में आता है कि मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, मैं लुक्स में अच्छा नहीं हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज पुअर है, या फिर मैं उनके सामने बोलूँगा तो वो मुझे क्या सोचेंगे मेरे बारे में. ये मुझे भी बहुत लगता था. इफ़ आई स्टार्ट स्पीकिंग आई मे नॉट साउंड गुड इनफ टू लिसन. राइट. सो ये फेयर लोगों के मन में होते ही हैं. दे आर इन टू कॉर्पोरेट्स. ऐसा भी है कि उनको जॉब मिल जाती है, कॉर्पोरेट में अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन, व्हेन इट्स कम टू स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, दे हैव अ फियर. तो ये बहुत मेरे को जो फील हुआ इतने एक्सपीरियंस में कि ये हम सब के अंदर कहीं ना कहीं होता है. It's not something that a person who's at a level or a position is not dealing with it, और या फिर उसके साथ ऐसा मतलब हो सकता है कि उनके पास कम्युनिकेशन अच्छी हो पर हो सकता है कॉन्फिडेंस ना हो. Maybe. हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. जैसे यू टॉक्ड अबाउट कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन, देयर आर ऑल्सो सॉफ्ट स्किल्स. सो व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स वुड यू लाइक टू एड्रेस? First of all, which I feel in this particular scenario, I would say emotional intelligence is a skill that everyone must have. जो हमने कॉर्पोरेट्स में भी बहुत ये चीज़ देखी है कि लोगों के पास उतना पेशेंस ही नहीं है, या फिर दे स्पीक रूडली, दे गिव यू दैट बॉसी एटीट्यूड समटाइम्स. So you have to be emotional intelligent if you want to work with your team and if you really want to grow with people. अकेले चढ़ना है तो you can go as a rude person or maybe as a not so sensitive or maybe I would say not so emotionally intelligent person. But अगर आपको अपनी टीम को साथ लेके चलना है, उन लोगों को साथ लेके चलना है जो आपके साथ इधर आए थे, तो you have to understand their emotions and you have to tackle the situation accordingly. इट इज़ नॉट दैट कि आप इमोशनली वीक हो या इमोशनली स्ट्रांग हो तो आप उनको उस चीज़ के अकॉर्डिंग देखो. प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन सामने वाले को अंडरस्टैंड करके उसकी सिचुएशन को समझ के यू हैव टू टेक द टीम, टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम और पीपल और मे बी इन योर फैमिली एज वेल. हम अपने फैमिली को लेके बहुत सेंसिटिव है, राइट. ऐसे भी डिसीजंस ले लेते हैं हम जो शायद उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें ठीक लग रहे हैं इमोशनली, बट दे आर नॉट प्रैक्टिकली राइट. राइट. तो वहाँ पे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है, जहाँ पे आपको चीज़ें करवानी भी है और हर्ट भी नहीं करना. अच्छा, मुझे ये बताओ, व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन कोच, एंड अभी हमने कॉर्पोरेट लैडर की बात करी, इमोशनल इंटेलिजेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड देन यू एबल टू, तो जो बिजनेस एटिकेट्स हैं, जब हम बिजनेस कम्युनिकेशंस की बात करते हैं और जब हम कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ने की बात करते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिटी, हाउ डिफरेंट इट इज़? Okay. See, there are many skills like leadership skills. You have to have the skill, I would say, जैसे मैंने भी बताया, emotional intelligence, then email writing, handling the people,
टीम स्पिरिट कैसे होना चाहिए, आपको टीम को कैसे लेके चलना है अपने साथ में. सो दीज वर द स्किल्स दैट यू हैव टू हैव इन योर बिजनेस. एंड बिजनेस कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आप एक बार कॉलेज में आ गए, वहीं पे आपको सारी चीज़ें करनी होती है. कॉलेज स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो कम्युनिकेट अच्छे से करे, कॉन्फिडेंस अच्छा हो. आपके कॉलेज में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते होंगे जहाँ पे आपको प्रेजेंट करना होगा. आजकल तो इंटर्नशिप भी बच्चे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं. सो हाउ डू यू क्रैक द इंटरव्यू, हाउ टू सिट फॉर अ इंटरव्यू, हाउ टू build your resume. That is the basic thing. You need to get the good resume. You have to know the interpersonal skills. You need to know the telephonic skills. So ये सब basic आपका start हो जाता है. Then again, presentation skills, public speaking skills, and the communication skills with the leaders. These things will go hand in hand. एंड यू सेड कि हमारे को इमोशनली इतना इंटेलिजेंट होना है कि हमें काम भी निकलवाना और हमें हर्ट भी नहीं करना. डू यू हैव सच एग्जांपल्स या क्लाइंट्स? ओके, Right. Sure. So let's suppose आपकी टीम में एक प्रोजेक्ट है और आपको वो प्रोजेक्ट क्रैक करना है. ठीक ठीक है, यू नीड दैट प्रोजेक्ट. अब आपकी टीम पूरा एफर्ट कर रही है, बट सम हाउ यू आर नॉट एबल टू क्रैक. हाउ वुड यू रिएक्ट एज अ बॉस, एज अ लीडर? I mean, पहले तो I'll get frustrated because of course that is a natural symptom. Then I'll just sit and I'll just see कि problem actually कहाँ पे है, and then I'll try to figure that out, talk to that person, or maybe try to deal with जो problem है उसका solution निकालने में, and then Right, excellent. But how do you speak to that person? Just maybe to your team, 2 to 3 members of team. आप उनको कैसे बात करोगे, इनिशिएट कैसे करेंगे आप उन्हें? I mean, I'll just let them know कि you know ये problem है, and let's say हमारी टीम से ये ऐसे जा रहा है, ऐसे पिक्चर हो रहा है, या ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो I want collaborative efforts on it. ऐसे कुछ करके if there's a specific person, of course अलग से, not in front of the team, I would take that person अलग से, and then I would help that person to guide कि ये ऐसे ऐसे it is interpreting. राइट, ये सब हम करते हैं जनरली. हाँ. बट अब अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस की बात करें या फिर आप टीम एफर्ट्स की बात करें, तो फर्स्ट गो एंड अप्रिशिएट योर टीम that you have done excellent work, you were so good at it, but somehow I feel we miss on some checklist, we miss on some key points, and that could be the reason of not getting the project. ये हो सकता है कि हमने ये मिस कर दिया, इस वजह से हम प्रोजेक्ट नहीं मिला. बट मेरी टीम के एफर्ट इतने अच्छे थे तो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड. फॉर द नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे. सभी हम साथ में बैठ के उसको क्रॉस चेक करेंगे और सब चीज़ें इतना अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा. व्हाट डू यू फील अबाउट इट नाउ? I feel motivated. I feel like working to the next project or maybe Yes. taking that project. एंड यू वुड फील लाइक कि ये जो लीडर है, ये जो पर्सन है, वो हमारे साथ ही है. ही इज़ नॉट ब्लेमिंग अस कि प्रोजेक्ट चला गया, इसके हिसाब मतलब नहीं मिला. ही इज़ नॉट गोइंग टू ब्लेम अस. ही वॉन्ट टू वर्क विद अस एंड ही वॉन्ट अस टू वर्क विद द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. Next project. ऐसा नहीं होगा निकाल देंगे, फायर हो जाएगा. राइट, अभी तो सबसे ज़्यादा टेंशन यही होता है, हायर एंड फायर चलता है. आपने एक काम अच्छा नहीं किया, बस नेक्स्ट आपका टर्मिनेशन लेटर इज देयर. सो दिस इज समथिंग एक सिक्योरिटी देता है ताकि आप एफर्ट्स और डालो. और वो सिक्योरिटी आपको वहीं से मिलेगी व्हेन यू आर सुपर effective communicator and you know how to handle the team, that leadership quality that you have. And again, Now I am able to relate to it. But at times now when people like leaders in my company and all of that, when they say ना उनको कोई काम कराना तो वो कैसे बोलते हैं, do you mind doing me this? Do you like like I am just Very able to polite. relate to that. Like मैंने कहा they could simply also tell it to me कि ये काम करना है and all of that, but then they turned it out. So like can you give me like more examples to it कि अगर कोई भी काम कराना है तो कैसे होगा, अगर कोई टीम प्रोजेक्ट क्रैक करना है तो कैसे होगा, और लेट्स से आपने अभी जैसे क्लाइंट्स की बात करी तो आपने ऑल ओवर फॉरेन कंट्रीज में भी क्लाइंट्स हैंडल किए, तो कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे कैसे फिर उनको डील किया जा सकता है? as you said, it was really nice example कि आप सामने वाले से पूछो would you like, if you don't mind or would you mind to do it. आप परमिशन ले रहे हो but you are somewhere know कि
मैं ये कह सकता हूँ इसको करने के लिए, और आपको भी पता वो कह सकते हैं, एग्जैक्टली. बट वो ऐसा कह नहीं रहे हैं, और आपका आंसर ना भी नहीं आएगा, आपका आंसर हाँ. आएगा यस आई वुड लव टू डू, है एग्जैक्टली. ना, आई वुड डू, इट्स माई जॉब. आप अंदर ही अंदर कह रहे हो इट्स माई जॉब, बट इतने पोलाइटली पूछ रहे हो तो मैं मना कैसे कर दूँ इसको, है ना. सो दिस हैपेंस, एंड दिस इज अ टेक. आई वुड से द कम्युनिकेशन स्किल्स दैट पर्सन इज हैविंग, वो अपना रॉब भी नहीं दिखा रहे, वो दिखा भी नहीं रहे कि दैट ही इज अ बॉस, और ही इज वेरी पोलाइट टू यू एंड ही वांट यू टू डू द वर्क. ही वांट इट कि आप ये काम करो, बट ही इज नॉट शोइंग यू दैट कि Right. आप ये काम करो. सो इन दैट पोलाइट वे, इन दैट वे यू कैन से इट. एंड इवन दो जब आपको लेट टाइम्स के लिए रुकना पड़ता है, आफ्टर वर्किंग आवर्स यू हैव टू स्टे बैक समटाइम्स, देन हाउ वुड यू मोटिवेट दैट टीम मेंबर्स कि आपको रुकना होगा. आप सीधा से स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके बोल दो कि रुकना है भाई. 2-4 दिन में योगा के टीम मेंबर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे कि हर थोड़ा टाइम में रोकने को बोल देते हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, हाँ. राइट. सो उस टाइम पे भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे, आप अपनी टीम के साथ कैसे रहते हो. So I would say best thing is to reward the person, to reward the team. अगर आप उनको appreciate करोगे उनके काम के लिए, उनको reward करोगे and in any way, चाहे वो एक ट्रॉफी है या फिर एक चेक है, in any way you would like, or maybe dinner, ठीक है, it's totally depend upon person to person or the team that you are having with. So it's a situation and you have to tackle the situation in that particular way. कि आपको कैसे मेंबर्स मिले. समटाइम्स ऑल्सो हैपन कि मैंने देखा है कॉर्पोरेट्स में, टीम मेंबर्स में जो लीडर है ही और शी मे बी 26 और 27, बट द टीम मेंबर वुड बी समवेयर 30+. एग्जैक्टली. होता है ऐसा. तो वो अब वहाँ पे ईगो आ जाता है, Clashes हो जाते हैं. क्लैशेस हो जाते हैं. वहाँ पे लगता है कि आई एम मोर एक्सपीरियंस देन दिस पर्सन एंड व्हाई शुड आई लिसन टू हर और एग्जैक्टली. उस सिचुएशन में एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो यू नीड टू गेट दैट बाउंड्री हैज टू हैपन दैट आई एम द लीडर एंड यू नीड टू लिसन दिस पर्टिकुलर थिंग. बट आप ये बोल के नहीं कर सकते ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो फिर You have to, show, you have to be in that way that we are a team and we are working. Let's suppose the X person is 30 ठीक and है. I am let's say 25. So I'm giving a project, right? I would like to take your insights, Mr. X, right? I would like to take your insight. What do you like to say about it? How we can go about this? You are more experienced. You know better. So can you please guide us how we can go further? अब आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है, आपने दिखा दिया कि यू आर एक्सपीरियंस. ईगो क्लैश खत्म. हाँ. उसको भी ये लगेगा कि मुझसे पूछा जा रहा है. राइट. आपको जो करना है यू कैन डू इट बाय योर एंड, आप वो करो. बट आपने टीम्स के सामने क्या बोला दैट ही नोस. आप उसमें चाहे थोड़ा सा इनपुट अपना दीजिए. यस यू आर सो परफेक्ट, यू आर राइट अबाउट इट. व्हाट आई थिंक इज कैन वी डू इन दैट वे. इफ यू फील इट्स perfectly fine, if you feel that works for us, can we do it in that way. आपका खुद का भी इंसाइड होता है किसी चीज पे, तो यू कैन गो हैंड इन दैट वेज, राइट. आपको पूछा भी, आपने उनको अप्रिशिएट भी किया, आपने उनकी एज का भी ख्याल रखा और अपना इंसाइट भी दे दिया कि दिस इज व्हाट आई वांट. उसको भी बताया कि आपको अपने तरीके से काम चाहिए, बट यू आर नॉट सेइंग इट डायरेक्टली. I mean that's so beautiful and I feel like कि these are the reasons कि हम, जैसे आपने बोला ना कि 25 है और 30 है, the reason वो जो बंदा है उसको कम्युनिकेट इतना अच्छे से करना आता है कि that is the like वो he's able to climb that ladder at that age, even if जो person is in 30 is still more experienced तब भी तो ऐसे. और मतलब जैसे कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ने वाले कौन से केसेस, जैसे कई लोगों का ना हर्ट कि अप्रेजल नहीं होता है, दे डोंट नो हाउ टू, मतलब ऐसा नहीं यार मैम कि उन्होंने काम नहीं किया, दे नो द वर्क, उन्होंने काम भी बहुत ज़्यादा किया, बट दे डोंट नो कि प्रमोशन, हाँ प्रमोशन कैसे लेना है, अप्रेजल के टाइम बात कैसे करनी है, अपना काम कैसे दिखाना है, क्या मैं ऐसा करूँ. और कई बार मैम ऐसा भी होता है कि देयर आर सिचुएशंस वेयर काम हमने किया पर क्रेडिट कोई और ले जाता है. तो हाउ टू डील विद ऑल दिस. या दिस हैपेंस. मे बी यू आर गुड एट टेक्निकल स्किल्स बट यू आर नॉट गुड एट सॉफ्ट स्किल्स. तो यहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ती है. आई हैव सीन
lot of people who are good at their technical skills, जहाँ पे उनको काम बहुत अच्छे से आता है, but they are not able to show it. आप शो नहीं कर पा रहे हो, आप बॉस को बता नहीं पा रहे हो वो चीज़. तो यू नीड टू वर्क अपॉन द प्रेजेंटेशन स्किल्स. प्रेजेंटेशन पे काम करो. जस्ट टेक द अपॉर्चुनिटी. जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है अपने ऑफिस में, टेक द इनिशिएटिव दैट आई विल डू इट. You know you can do it. That person might also know that you can do it, but you are not taking the initiative that I will do it. और आप अपने efforts ही वहाँ पे नहीं दिखा रहे because you are maybe introvert, you are not confident enough to speak. This happens. So work upon these particular skills कि I'll take the initiative, I'll do the work, I'll show my work, I'll present, I take the client. Anyhow, आप तो इतनी चीज़ें हैं सॉफ्ट स्किल्स लर्न करने के लिए और ये सब सीखने के लिए भी. यू हैव द मेंटोर, यू हैव द पीपल, इवन दो यू हैव द चैट जीपीटी. राइट. उससे पूछ लो अगर आपको नहीं समझ आ रहा. जस्ट गिव द प्रॉम्प्ट. आई एम इनटू दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंडस्ट्री. आई एम गुड एट दिस पर्टिकुलर स्किल्स बट आई एम नॉट गेटिंग द प्रमोशन. व्हाट शुड आई डू? ओके. तो दैट विल चैट जीपीटी विल गिव यू द सॉल्यूशन कि आपको ये शो ऐसे करना है, या आपको ये बोलना है अपने बॉस को, आपको ये चीज़ बतानी चाहिए. आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है. बेसिक यही है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने हैं ताकि आप शाइन करें. और शाइनिंग इज नॉट अबाउट कि आप कंटिन्यू बोले. इट्स नॉट अबाउट दैट कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब तो जाके चटर पटर करो. नो, इट्स नॉट दैट. इट्स जस्ट सही टाइम पे सही बात बोलना है. हाँ, आई फील लाइक कि अगर करने की विल होती है तो बंदे लोग ढूंढ लेते हैं चैट जीपीटी पे. दे फाइंड द वे. बट मैम आई फील लाइक ना हमें बहुत बारी ये नहीं पता होता कि कहाँ रुकना है. जैसे आपने बोला ना कि बोलते रहे, वी डोंट नो कि हमें कहाँ रुकना है. जैसे हमें ये तो बोलते चैट जीपीटी कि बोलो, अब यहाँ पे बोलना है. अब बोल रहा है लेकिन ये नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं. मे बी वी नॉट एबल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. तो उसको कैसे इम्प्रूव करें? राइट. वर्क अपॉन योर बॉडी लैंग्वेज फर्स्ट. क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है उससे मोस्ट ऑफ द पीपल विल जज यू. ठीक है. ऐसे आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है. सो ड्रेसअप गुड, ड्रेसअप कॉन्फिडेंटली. क्योंकि एक ड्रेस चेंज करने से ही ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है. सो बी कॉन्फिडेंट एट योर वर्क प्लेस. इट डजेंट मीन दैट आप एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने. इट डजेंट मीन दैट. इट मीन्स कि आप जो भी पहन रहे हो उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हो. तो आप अपने लुक्स के अकॉर्डिंग देखो कि आपको क्या सूट करता है और आप किस में बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करते हो. देन वर्क अपॉन द बॉडी लैंग्वेज. हाउ टू स्टैंड, हाउ टू सिट, हाउ टू मेक आई कॉन्टैक्ट, हाउ योर जेस्चर वुड बी व्हेन यू आर सिटिंग, हाउ योर हैंड मूवमेंट शुड बी. इट शुड नॉट साउंड बॉसी. जैसे हम ऐसे बैठ के ऑफिस में बहुत काम करते हैं या बोलते हैं, जब बात करते हैं, it means you are not open for opportunity. It means you are losing that. You are not open to accept it. When your hands are open, when your eyes are making contact, when your body language is like that, you are accepting somebody, वो बहुत फ़र्क पड़ता है. उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि हम चटर पटर बोलते रहते हैं बट हम कहीं पे ये नहीं पता कि क्या बोलना है और कितना बोलना है, कैसे भी बोलना है, ये भी नहीं पता. हाँ. It's a saying, what you want to speak is less important than how you speak. तो how you speak matters the most. कैसे बोलना है वही मैटर करता है. क्या बोलना है वो सेकेंडरी है. तो आपको जो भी बोलना है उसको प्रैक्टिस करो इन फ्रंट ऑफ मिरर कि मेरे को नेक्स्ट डे जाना है और मुझे ये चीज़ बॉस के सामने रखनी है. उसको प्रैक्टिस करोगे 2-3 बारी, इवन रिकॉर्ड भी कर लो. 10 बारी रिकॉर्ड करोगे, यू गेट टू नो कि हर बार इम्प्रूव क्या हो रहा है. ठीक है. हाउ यू स्पीक विल फिल्टर आउट. राइट. एंड देन जो भी बात है आपकी उसको पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में बता दो. 1 to 3 points. दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू से. 3 points में इसको डिवाइड करो एंड देन स्पीक. दैट्स इट. उसको आपको लंबा नहीं करना, उसको स्ट्रेच नहीं करना. जो भी आपका पैराग्राफ आपने दिमाग में तैयार किया है उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर लो कि आज ये प्रेजेंटेशन है, इसके बारे में मुझे ये 3 स्ट्रैटेजीज देनी है. उसको पॉइंट्स में दो स्ट्रैटेजीज को, पैराग्राफ में नहीं. सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू. उससे आप साउंड कॉन्फिडेंट होगे, साउंड इंटेलिजेंट होगे और ऑफ कोर्स यू पीपल विल फाइंड यू दैट यू आर समबडी हु हैज़ द अथॉरिटी. तो वो चीज़ें बहुत आती हैं फिर अच्छे से. ऑल राइट. आई फील लाइक हमारे पास तो मेरे पास तो बहुत सारे सवाल है और आपके पास बहुत सारी बातें हैं, वो हम चलते ही रहेंगे. तो इसलिए ना while coming to a wrap, while coming to an end, I would like to give it to you to
check with the audience or talk to them about that one piece of advice that you as a person, become a communication coach, a person who has been dealing with all of those people, teenagers, adults, foreign clients and all of that. आपको क्या लगता है कि कमी एक्चुअली कहाँ रह जाती है? सिर्फ प्रैक्टिस. People don't practice. They feel it's boring, or they feel it's not enough to become a confident one. कोई भी एक दिन में नहीं सीखता, और कोई भी सीख के पैदा नहीं होता. It's a skill that you need to learn, or you need to polish. Maybe you're good gifted person, maybe you are, but you need to polish that. Practice daily. Go on a stage, take initiative, as I said, do the work. अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, जस्ट क्रिएट वन. लाइक आई स्टार्टेड, मैंने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़, मेरे को किसी ने हाथ में नहीं दी थी. आई क्रिएटेड ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़. फ्री वेबिनार्स करना, फ्री सेमिनार करना, कॉलेज में, स्कूल्स में, कॉर्पोरेट्स में, मैं खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती थी, बनाती थी अपने लिए कि नहीं, आई विल गो विद द फ्री थिंग्स, जस्ट अटेंड. देन फीडबैक से मुझे पता लगा कि इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. नहीं तो मुझे किसी गूगल ने नहीं बताया था कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. और व्हेन आई स्टार्टेड दैट टाइम, तो कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स को कोई पूछता भी नहीं था. दे वर लाइक कि ये होता ही क्या और हमें क्यों चाहिए. पीपल वर लाइक कि ये तो हम स्कूल में सीख जाते हैं, हमें जॉब तो मिल ही गई है, तो हम कंपनी में कर लेंगे. क्या आपको प्रमोशन मिल गई? क्या आपको हाइक मिल गया? क्या आपको वो पोजीशन मिल गई जो आप चाहते थे? नहीं मिली. देन यू हैव टू वर्क अपॉन दीज थिंग्स. सो I feel प्रैक्टिस. like पहले तो हम we didn't even knew कि ये skills ऐसी हैं, या skills के basis पे सब कुछ होगा. पहले तो डिग्रियाँ and college, Exactly. यही सब चल रहा था. I feel like मैम honestly हमें सबको पता होता है, we all know कि communication का gap है, we all know कि confidence का gap है, but फर्क कितना है, we don't practice, we don't initiate, we don't stand up. एक बार कर लेंगे, दो बार कर लेंगे, फिर हमें लगता है कि नहीं, तो that is the lack that I completely resonate to, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता है कि हम लगे नहीं रहते बस किसी चीज़ के पीछे. बिकॉज इट डजेंट मैटर कि टैलेंट क्या है. व्हाट मैटर्स इज कि किसने कितने टाइम तक उसको किया, हाउ मच एफर्ट्स वर बीइंग पुट इन दैट पर्टिकुलर डोमेन. ऑल राइट, वन पीस ऑफ एडवाइस दैट इज स्टिल विद यू एज अ रैपिड फायर राउंड. Okay. In what sense? Like your life theory behind all of this. I am so experimental person. I love to experiment, and until and unless I'm not satisfied with the practice thing, now I am not going to give it to somebody else. ऐसा कहते हैं कि डेस्टिनी में लिखा होगा तो हो जाएगा. मैंने भी ये बोला कि मेरी कम्युनिकेशन जर्नी वॉज रिटन इन माई डेस्टिनी. Destiny, yeah. पर उसके लिए मुझे एफर्ट तो करना ही पड़ा. अब उन्होंने तो लिख दिया जिसने भी लिखना था. हाँ. पर मैं सीधा कम्युनिकेशन कोच नहीं बन गई, या सीधा मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ गए. आई हैव टू गिव माई एफर्ट्स टू इट. Right. तो अगर आपको कुछ चाहिए तो डू द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट टू गेट द थिंग्स. आजकल जैसे बहुत लोग क्रिकेटर्स के पीछे हैं, या जो भी उनको चाहिए, मे बी अ गर्ल और अ बॉय, तो कितने एफर्ट्स डालते हैं. अब क्रिकेटर्स जो है वो कितने एफर्ट डालते हैं कि हमें वो ट्रॉफी मिले, उसके लिए कितना प्रैक्टिस करते हैं. ऑल्दो दे हैव प्लेड अ लॉट, still they are playing every single day. Right. They are showing up. Right. Why they need to do? क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं करूंगा तो बॉडी काम ही नहीं करेगी उस टाइम पे. Exactly. अभी मैम विराट कोहली वाला recent का it took 18 years to get that success, but then they were continuous with it. They were doing it, and that is the reason we all from. And honestly, जब मैम ने ये चीज बोली कि she creates opportunity, honestly, she herself pitched us all in, and she herself put it in that effort of I want to talk to your people, I want to tell them these things, and I feel like that is so nice of you. We're really grateful to have you with us. I feel like my audience will be really happy to learn and understand things from you. One book that you would like to suggest to everybody? The Art of Public Speaking is a really nice book. You can learn from that. And if you are not the book reader, if you're not somebody who can go with reading part, I would say public speaking is something that you come to know by doing it. So rather than reading, go for YouTube channel, watch TED Talks, watch these motivational speakers that you would love to listen, and then practice in front of mirror. Record yourself every day. Work upon your body language, work upon your eye contact, work upon the things, the way you say it, the way you express it. Right. So इन सब चीज़ों पे काम करो. बुक रीडिंग
आई हैव नॉट डन इट. मैंने लिखी है बहुत, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, बट मैंने रीड इतना नहीं करा. मैं रीड करती हूँ तो सिर्फ गूगल से कुछ फैक्ट्स निकालने के लिए, या कोई एक्टिविटी जो मुझे अपने सेशन में इंट्रोड्यूस कराने है उसके लिए मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, देख लेती हूँ कैसे होगा. बट what I do is practice daily basis. Thanks for being honest, see guys. Reading books is not the hack. It's like आपको जो काम करना है वो आप कैसे भी करो. It's your call. मतलब बस वो काम पूरा होना चाहिए. All right. As in one song that you still relate to. One song that like my recent love song is like लग जा गले, फिर कभी ये मुलाकात होना. So this was this मतलब really touched song. मैं 80s की हूँ in that way, but ऐसे ही सॉन्ग मुझे पसंद आता है who has some soul. नहीं तो आज के टाइम का तो कुछ नहीं. All right. One challenge और you मतलब कुछ ऐसा जिसने एकदम सब कुछ बदल दिया and you just felt like कि नहीं इसके बाद नहीं हो पाएगा, but then you just did it. Yes, like I said, the career gap that I had. Actually, my daughter was born at that time. और मेरी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, तो वहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम ऐसा नहीं था. एंड दैट फील मेरे को उस टाइम पे काम करते हुए 13 साल हो गए थे. मतलब आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 15 और 16 अराउंड. सो इट्स बीइंग लाइक 13 years I was working, and after a baby I have to sit at home. And that was killing me inside. कि यार क्यों बैठना है मुझे, मैं क्यों नहीं कर पा रही कुछ. That time I feel like you just polish yourself. और वही टाइम था इंट्रोस्पेक्ट करने का मेरे पास. आई वर्कड अपॉन माई ऑल द स्किल्स. मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस देखे अपने कि मैं कहाँ पे अच्छी थी, कहाँ पे आई वॉज हैविंग दैट ग्रोथ, दैट मनी ऑल्सो, क्योंकि पैसा भी तो ज़रूरी है. तो वो सब चीज़ों को मैंने देखा, समझा, लिखा और उन पे ध्यान दिया कि मुझे अब और क्या करना चाहिए. क्योंकि ये जो 6-7 महीने होंगे मैं घर पे छोड़ के तो कहीं पे नहीं जा सकती. तो जस्ट वर्क अपॉन योर सेल्फ. और जब आफ्टर 6-7 months आई वॉज गोइंग टू द मार्केट टू गेट अ जॉब, तो जॉब नहीं मिली. तो वो और ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि यार 13 साल का एक्सपीरियंस के बाद जॉब ही नहीं है तेरे पास. तो अपने आप को पूछती थी क्या हुआ, क्यों नहीं है. आई फाइंड आउट कि करियर गैप के बाद ना कोई आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता. दे विल कंसीडर यू अ बिट लेस. यस. And then he was like कि नहीं, ये तो I won't accept or expect even though from myself. Then ये सब चीज़ें करते करते I went to the pain point of the people. कि क्या क्या पेन पॉइंट है जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि दिस इज ऑल्सो माई पेन पॉइंट जहाँ पे आई एम नॉट वर्किंग. कितने लोगों का और होगा ना. आई एम अनएम्प्लॉयड और आई नीड टू वर्क. इट्स नॉट कि मुझे पैसे की कमी थी उस टाइम पे या कुछ ऐसा था. इट्स जस्ट कि 13 साल के बाद मुझसे बैठा नहीं जा रहा था. तो व्हाट शुड आई डू. देन आई फिगर आउट कि आई हैव टू गो इनटू दिस कोचिंग इंडस्ट्री, और जो मैं अच्छी हूँ बोलने में, मुझे उसी को और पॉलिश करके आगे चलना है. और लोगों को हेल्प करना है. राइट, दैट वाज माय एजेंडा कि इससे किसकी हेल्प हो पाएगी. सो हाउस वाइफ्स आर देयर, कॉलेज स्टूडेंट आर देयर, स्कूल स्टूडेंट्स आर देयर, वर्किंग प्रोफेशनल्स आर देयर. सो देयर एन नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली नीडेड. पहले तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि उनको पता ही नहीं था उनको उसकी ज़रूरत है. तो यू हैव टू एडुकेट देम. तो लाइक हाउ डू यू ब्रिंग दैट क्लैरिटी टू देम कि जस्ट वर्कशॉप, सेमिनार्स, यू नीड टू कंडक्ट द वर्कशॉप विद द पीपल. जैसे अब स्कूल के आपको प्रिंसिपल को भी नहीं, मतलब आई एम नॉट मच ऑफ मेट सच प्रिंसिपल जिनको पता है कि सॉफ्ट स्किल आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स. मैं खुद भी नहीं मिली इतने सालों में. आज मुझे 17 साल हो गए, तो मुझे खुद भी नहीं ऐसे लोग मिले जो कि ये समझते हैं कि बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है. उनको पहले तो यही टीचर्स को गाइड करो, प्रिंसिपल को गाइड करो, पेरेंट्स को गाइड करो दैट दिस इज समथिंग यू रियली नीड फॉर योर चाइल्ड. राइट. वहाँ से स्टार्ट किया. फिर कॉलेज स्टूडेंट के पास चैलेंज था कि उनको जॉब नहीं मिलती थी. तो उनको पता था कि जॉब नहीं मिल रही, पर क्यों नहीं मिल रही. क्योंकि मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा, मे बी मेरा रिज्यूमे ही नहीं. आजकल तो ATS फ्रेंड रिज्यूमे यू नीड टू हैव. तो आपको रिज्यूमे बिल्ड करना नहीं आता. सो आई हेल्प देम to build the resume, to get for the interview calls and to get the face to face interaction with them. तो वहाँ पे मुझे चैलेंज ये समझ आ गया था. फिर उन्हीं बच्चों ने मुझे बताया कि मैम आप, हमारे तो स्किल्स इतने अच्छे हो गए हैं, सॉफ्ट स्किल हमारे बॉस के तो नहीं है. I was like, what?
कि बॉस के मतलब जो भी उनका लीडर होगा उस टाइम पे या जिसके अंडर वो काम करेंगे, जो मैनेजर्स होंगे, दे वर लाइक कि उनको तो इतने अच्छे से नहीं बोलते मैम, वो तो बहुत रूड बोलते हैं। हाँ आई वाज लाइक कि चलो मुझसे मिलवा देना। मैंने कहा नहीं, विल वर्क अपॉन इट। सो उन्हीं बच्चों से आई हैव टू फाइंड दी इंटर्न्स Right. जो उसके लिए काम कर पाए, Hmm. जो भी अवेयरनेस कर पाए कि दैट दिस इज द थिंग दैट यू वी हैव टू वर्क अपॉन। और कॉर्पोरेट में तो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग होती थी, पहले से ही होती थी। हाँ कॉर्पोरेट आई हैव एन आइडिया, Right. बट ये स्कूल्स और कॉलेजेस में अब हमें डालने हाँ, की बहुत ज्यादा जरूरत हो बहुत गई है। फिर बचे हाउस वाइफ्स, जिनका एक्चुअली मेरे घर में ही कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स में जब अब फैमिली गेट टुगेदर में आप मिलते हो तो दे वर लाइक कि तुम क्या कर रहे हो, इससे क्या होता है दीपिका? लाइक कि भाभी या जो भी हैं, आई विल कॉल देम, कि आप कभी जब पीटीएम पे जाते हो, डू यू फील कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन इंग्लिश? डू यू फील कि टीचर आपसे ज़्यादा आपको डोमिनेट कर रहा है कहीं बच्चे को हाँ। लेकर? डू यू फील कि आपको उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से बतानी है कि मेरे बच्चे पे आप इतना ध्यान दो और उसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, और मेरा बच्चा ये काम नहीं कर पा रहा है, यू हैव टू हेल्प हर। आप टीचर को ये बोलते हो? बस लाइक कि नहीं, मैं तो सुन के आ जाती हूँ जो टीचर बोल रही है। मैंने कहा क्यों सुन के आ जाते हो? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि इंग्लिश अच्छा नहीं है, मे बी उनको ये लगता है कि जो टीचर कह रही है वो वही सही। सही है। हाँ हमें पता ही नहीं था कभी, हाँ। हमको किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता ऐसा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सॉफ्ट स्किल्स की हम कितनी बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स में ही आता है ना किसी को समझना, हाँ, अंडरस्टैंड understand करना, करना। फिर जवाब देना। मतलब आप किसी से बात जवाब देने के लिए थोड़ी करते हो, आप किसी से बात उसको अंडरस्टैंड करने के लिए करते हो। Right. You know, these bits and small pieces. All right, so I feel like you have a lot to tell. और मैं वैसे भी बोल रही थी कि वन ऑन वन का तो बहुत स्पेशल सा एक कनेक्शन होता है जो मैम के साथ बिल्ड हो जाएगा। तो आई वुड लाइक टू नो कि बच्चे आपसे एक्चुअली कनेक्ट कहाँ और कैसे कैसे कर सकते हैं। Okay, so LinkedIn पे they can connect on my social media platform. I am there on LinkedIn, Instagram. So Okay. you can connect me over there. एंड इज देयर अ पर्सनल कोचिंग सेशन, कोई प्रोग्राम है या कैसे? Yes, it's totally depend what is your requirement. It's not कि हर एक को एक ही प्रोग्राम चाहिए होता है या हम एक ही मतलब तरीके से गाइड कर सकते हैं. It's as per your requirement. Okay. You may be required only one session, or maybe you were like 10 sessions. So it's on the basis of some particulars we will guide you. All right, sorted. So I feel like I'll drop down her links and everything below. You guys can talk to her. You guys can communicate the problem to her, because I feel like she'll resonate to everything, because she has gone through that 17 years of long journey where she was a student. She has been facing all of this in college and then, coming up so far. So thank you so much for coming. It was lovely having you with us, and I hope the audience resonate, connects, and it gives you also a lot of, people to resonate. Sure, I'm sure, and I'm really glad to be there. And it's personally, I feel so energetic while I met you all. So it's really a great experience for me as well. Thank you so much. Thank you guys for watching. Do not forget to comment, like, share, subscribe, and hit the bell icon so that in case if you want any future updates for the videos, you can check it out.